मेंटरशिप आपके सफलता को चार चांद लगा, आपके रिस्क फैक्टर को एडजस्ट कर देती है, आपके टाइम को शॉर्ट कर देती है, आपको इमोशनली सपोर्ट करती है। तो मेंटरशिप सक्सेस लाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। आप सब लोग ये मान लीजिए कि आप मैनेजर्स नहीं, आप एक डेवलपर्स, आप एक क्रिएटिव पर्सन, और आप यदि डेवलपर्स हैं तो आप जो चाहें यदि अपने संकल्प के साथ में, लक्ष्य के साथ में, उद्देश्य बना के करेंगे तो आप कर सकते हैं। Good afternoon, sir, and once again, a very warm welcome to the Handcrafted I'm Sambalpur. It's an honor to have you here. So, now, since it's been more than 50 years, you completed your graduation and you have witnessed India's industrial evolution. So, how has your vision of nation building evolved over the years? See, I graduated in 1972-73 as a chemical engineer, and I was fortunate to given a responsibility of starting a soybean processing plant. So during that time, the nation building meant first jobs, set of factories, GDP growth, and over the years now, after this computerization, 80s, globalization, digitalization, information technologies, and all, so much evolution took place. I think that the nation building should be all inclusive. It should deal with ethnic leadership. It should deal with sustainable development. It should deal with employment. So if they are all being incorporated, actually that will be the nation. I would say that economy and ecology should go hand in hand. All right, sir. And success and sustainability also should work together. Okay, now since you have mentioned about leadership and sustainability, so there are a lot of future leaders sitting over here. So, what qualities do you believe are non-negotiable for young entrepreneurs in today's India? See, many qualities I would say, but I would say three qualities are very important: integrity, honesty, resilience, and curiosity. When I say without integrity, success is temporary. Without resilience, the moment you face any challenge, you'll give up. And without curiosity, the moment you find a small success, your attitude to do more disappears. So these are very important, I would say, qualities one should have, and that will make you a successful and a great. All right, sir. With the qualities that you have mentioned, so now how can management students, basically the IM students, change their mindset from job seeking to job creating? Like, how can they move to job creating mindset without losing the financial stability? Yeah, it's very important. I would say that they should have two pocket strategies. One is safety, and another would be expect. Those who do not come from resourceful families, they have to first look at safety, and they should, whatever is their passion, love for doing anything in their life, they should take their job, create some resources, and then they can plan. And those who have resources, they should go for pursuing their passion, and they must take challenges
So if if they have, उनका जो गिव अप एटीट्यूड नहीं होगा, वो चैलेंज और लगे रहेंगे, तो जरूर सक्सेस। आपने पिक्चर देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, Right. यानी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर आपको करने की तल्लीनता होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आप उसको इवेंचुअली उसको जीत। All right, sir. So now, since you have mentioned about like students taking up the challenge and being determined on it, so a lot of students start their first venture while they are pursuing their degree. So, I mean, what would be your advice to the students who start their first ventures from the campus itself, and what should they focus on? I mean, beyond funding and pitch decks. देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि इन 3 P स्ट्रेटजीज रखें वो लोग, प्रोडक्ट, पर्पस एंड पे। इन तीनों को यदि वो समावेश करेंगे तो वो पाएंगे कि वो उसके अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो जब प्रॉब्लम होती है तो आप एवरी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन के साथ में अपॉर्चुनिटी, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता, चैलेंज ले लेते हैं आप। तो वो यदि अपनाएंगे, तो जैसे मेरे जीवन के अंदर बताऊँ मैं आपको, जब मैंने फर्स्ट सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट लगाया 73-74 में, तो इंडिया जो था अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के लिए बल्गर बीट इंपोर्ट, बल्गर बीट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बीट एंड सोया। अब जब मैंने देखा कि भाई ये सोयाबीन अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम लोग सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, और सोयाबीन वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन होता है, तो क्यों ना हम उस प्रोटीन को, जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको क्यों ना हम मार्केट करें। हमने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लाई और एक ब्रांड न्यूट्रिला बनाया, हाउस होल्ड। तो जो न्यूट्रिला ब्रांड प्रोटीन का सोर्स है, वो उसमें मेहनत से काम किया, ब्रांड को प्रमोट किया, अमेरिका की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाए, और आज नेशन वाइड। तो कोई भी समस्याओं के अंदर आप यदि उसको एनालाइज करें, उसकी अपॉर्चुनिटी देखें, तो आप एक अच्छी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मैं आप सब लोग कहूँगा कि भाई प्रॉब्लम से डरिए मत, प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी देखिए। जी सर, तो सर जैसे कि आपने कहा कि हमें प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और उस पे लगे रहना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। सो समटाइम्स we do get success in that, and sometimes we do require mentorship. So from your perspective, what's the role of mentorship in such high performance ecosystem like IIMs for a student who's willing to go to entrepreneurship? देखिए, मेंटरशिप को मैं कहता हूँ कि विजडम प्रोवाइडर्स, और आपका इंस्टीट्यूट बहुत, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट होंगे कि आपके यहाँ मेंटरशिप, आपके अंदर लोग आके आपको समझाते होंगे, सिखाते होंगे। और ये मैं अपने जीवन के अंदर भी मैं पाता हूँ कि मेंटरशिप आपके सफलता को 4 चाँद लगा, आपके रिस्क फैक्टर को एडजस्ट कर देती है, आपके टाइम को शॉर्ट कर देती है, आपको इमोशनली सपोर्ट करती है। तो मेंटरशिप सक्सेस लाने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, और आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कॉलेज में बहुत सारी मेंटरशिप मिलती है, और आप अपने, जैसे आपके जीवन के अंदर आपको ब्रदर सिस्टर भी आपको सपोर्ट करते हैं, माता पिता आपको अलग से करते हैं, पर बिजनेस क्रिएशन के लिए मेंटरशिप आई वुड से इज वेरी रिकमेंडेड। मैंने अपने बच्चों को जब कॉलेज से पढ़ के आए थे, वो मेरे साथ काम भी करते थे, तो मैंने मेंटर्स लगाए, क्योंकि वो जो मुझे समझा नहीं सकते थे या बता नहीं सकते थे, वो उनसे मैं समझा। तो मेंटरशिप ऐसे इज ए वेरी गुड थिंग वन शुड हैव। All right, sir. So now since there are future leaders sitting here, so how do you think that how do you see IIM students contributing to the
growth of this nation and towards the goal of achieving Viksit Bharat by 2047? यदि आपने भारत आज विकसित भारत के बारे में बहुत लोगों ने कहा है, मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ये मान लीजिए कि आप मैनेजर्स नहीं हो, आप एक डेवलपर्स हो, आप एक क्रिएटिव पर्सन्स हो। और आप यदि डेवलपर्स हैं तो आप जो चाहें यदि अपने संकल्प के साथ में, लक्ष्य के साथ में, उद्देश्य बना के करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो यदि आपकी ये मानसिक धारणा होगी तो आप एक अच्छे भारत का, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। उसके अंदर आपको क्या चाहिएगा? सत्यता, ईमानदारी और लोगों को सहायता करने का एटीट्यूड, स्किल डेवलपमेंट्स, इन सब का यदि ग्रीन इनिशिएटिव्स, इन सब का यदि समावेश है ना, प्रकृति का ध्यान रखें, सामाजिक ध्यान रखें, ह्यूमन कम्युनिटीज का ध्यान रखें और स्वयं का भी ध्यान रखें। तो इन सब का समावेश करके आप और मेहनत से करेंगे तो आप जरूर एक भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। हाँ, साथ रखिए कि हम कोई गुलाब का झाड़ नहीं लगाएंगे, जब खाली फूल आया वो भी बंद नहीं, हम नीम का झाड़ लगाएंगे जाकि जब लग गया वो 10-12 साल बाद हमेशा उसकी ताजी हवा। तो आपका कार्य ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उसका एक प्रभाव रहे और आपको भी उसके अंदर गर्व महसूस हो और लोगों को फायदा हो। थैंक यू सर। जो आपने उद्देश्य की बात की और नीम के पेड़ की बात की जो कि हमें हमेशा चाहोगे, so I would like to know what was your core vision behind the Ganesh Sara Foundation? I mean, you have contributed a lot to sustainability and to value education through that. What was your core vision behind? देखिए, दिनेश शरा फाउंडेशन एक एनजीओ है और इसके 4 इनिशिएटिव्स हैं, 4 वर्टिकल्स हैं। एक ग्रीन गोल्ड है जिसको कि मैं अपने 22 फरवरी को बर्थडे के रूप में मनाता हूँ और इसमें हम भारत में ही नहीं, विश्व में जहाँ भी हमारे एसोसिएट्स हैं, एफिलिएट्स हैं, वहाँ वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं और 10 से 15 लाख से अभी तक लगा चुके हैं और इनिशिएटिव चल रहा है। इसके प्रति एक भावना है कि भाई हम प्रकृति से इतनी चीज लेते हैं, हमारा उसके ऊपर है, हमको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हम एक सेवा कर सकें। तो वृक्षारोपण से अच्छी कोई प्रकृति की सेवा नहीं हो सकती है। क्यों बैक टू एक गौ शक्ति अभियान चलाते हैं हम लोग, जो कि मेरी मदर को देशी गाय से बड़ा वो था। तो उसमें ये कि भाई हम जानवर के लिए, पशु पक्षी के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो, तो गाय को माँ के रूप में मानते हैं, वो सबसे अच्छा एक उपयोगी जीव है। तो वो हम लगाते हैं। उसके अंदर ही इनिशिएटिव है कि भाई हम जो भी गाय बीमार हो जाती हैं उनके कैंप्स करते हैं और उनके इलाज करते हैं और उनको दवाई देते हैं, फ्री देते हैं और उनकी रक्षा करने की, उनकी हेल्थ की रक्षा करते हैं। थर्ड हमारा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए हम उनके प्रोड्यूस को बेचने में मदद करवाते हैं और उनके यहाँ भी वो गाय पालन करें और उसके दूध से बेच के अपना घर चलाएं। और चौथा हमारा ये है कि हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं, हम अच्छी स्कूल अडॉप्ट कर रखे हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो स्कॉलरशिप देते हैं, जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आते हैं उनकी फीस को रिम्बर्स करते हैं। उसके प्रति भावना ये है कि भाई बच्चे मोटिवेट रहे कि हमको अच्छे योग्य बनता है। मेरा खुद का अनुभव है कि सरकार में, संसार में आपको सम्मान से आपकी योग्यता से मिलता है, कोई के कहने से नहीं। तो अपने आप को योग्य बनाइए, तो उसकी हमें ये इनिशिएटिव करते हैं। तो चारों इनिशिएटिव चाहते हैं कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी समझें प्रकृति के प्रति, जीव जंतु के प्रति, अच्छे कार्यों के प्रति और बच्चों को इंस्पायर करें। So these are the things we demonstrate and so that they follow. All right, sir. So, with that being said, you are also a very strong advocate of bringing spirituality into business. Do you think this really helps in leadership? If yes, how does it help? देखिए, मैं अपने जीवन के बारे में कहूँ कि मैं जब मेरे मदर फादर का मैं बहुत
धन्यवाद देता हूँ कि मेरी माँ एक आध्यात्मिक थी और उन्होंने मुझे कहा धर्मो रक्षिति रक्षित, धर्म तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है और उसको साथ रखो। एंड माय फादर वाज कर्मनिष्ठ। तो इन दोनों के संस्कारों से मेरे जीवन के अंदर आध्यात्मिक का बीज हो गया। और फिर हमारा पूजा होती थी, रिचुअल्स होते थे और संत लोग का आना होता था, तो पौधा अंकुरित होके वृक्ष में बना, वो बढ़ के फिर उसके अंदर बीज फल आए, फूल आए, फल आए। तो कहने का मतलब ये कि भाई अ, हम ऐसे कार्य करें जो कि लोग का फायदा हो। और अब जो आध्यात्मिक है, जो मैंने जीवन में अपनाया है, उससे मैं मेडिटेशन करता हूँ, रोज पे हवन करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे आत्मसंतुष्टि, मैं अपने आप से जुड़ पाती हूँ और जुड़ने से मेरे मन में अद्भुत शांति आती है और उस शांति से क्लैरिटी आती है। तो आज मुझे यदि कोई पूछे कि भाई सक्सेस का क्या फल, सक्सेस क्या है, तो बोलता हूँ इनर क्लैरिटी। जब मन शांत हो और आपको क्लैरिटी अब क्या करना है, तो सबका संदेश। मैं कहूँगा कि ये मार्क जुकरबर्ग एक बार स्टीव जॉब के पास गए और बोले कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है और बड़ी समस्या है। तो उन्होंने बोला तुम इंडिया के एक आश्रम में जाओ। तो वो, और उनको ये नहीं कहा कि हार्वर्ड जाओ, ऑक्सफोर्ड जाओ, तो इंडिया के आश्रम में आए और उनको अपनी समस्या पर निभा, क्योंकि वो वहाँ पे उनको उनका मन एकाग्र हुआ, शांत हुआ और उनको जो इतनी क्लैरिटी उनको मिली, तो जो चाहते थे उनको सफिशिएंट। आध्यात्मिकता मैं कहूँगा कि ये आप दीजिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक अपनी योग्यता को बढ़ाने का सबसे सहज और सरल तरीका है। और ये हमारे भारत सनातन की हमारी देन है, ये इसको आप जरूर समझिए और अपनाइए। जी सर, उन्होंने कैंची धाम या हिम करोली बाबा के। हाँ जी। सर, आपने आध्यात्मिकता की बात की, मन की शांति की। आपका काफ़ी झुकाव संगीत की तरफ भी है, तो उसके बारे में कुछ बताएँ सर, उससे आपको कैसे मदद मिलती? देखिए संगीत मैं मानता हूँ कि इज लैंग्वेज ऑफ सोल। संगीत आपका सबसे अच्छा मित्र है। संगीत आपके सुख को बढ़ाता है, दुख को कम कर सकता है। और संगीत में आप संगीत यदि आप स्पिरिचुअल सिंगिंग करें या राग बेस करें या पुराने संगीत गाएं या सुने, आपको एक आत्मसंतोष, शांति। इसीलिए हमारा एक इनिशिएटिव है संगीत से सनातन। उसमें हमने जितने भी स्पिरिचुअल सिंगर्स हैं उनके साथ इंटरव्यू लिया है और उन्होंने सब ने कहा कि भाई हम संगीत से उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, उस मानसिक शक्ति को प्राप्त करते हैं जो कि हमको एक अद्भुत शक्ति से मिला। तो संगीत में हर आप लोग को कहूँगा कि संगीत को जीवन अपनाइए, आपका सबसे अच्छा मित्र है। एंड संगीत यू मेक योर लाइफ cheerful, joyful and purposeful. सर, आपका काफ़ी झुकाव रीडिंग की तरफ भी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू like reveal a book on philosophy that like shaped your leadership or motivated you deeply. देखिए मैं भगवत गीता जो है, क्योंकि मैं प्राय स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, तो भगवत गीता जो है ये आज की तारीख में एक ऐसी ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है जो कि आपको जीवन के सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी और उससे आपको इट इज वन बुक विच इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई भी आपकी समस्या हो तो अध्याय पढ़ लीजिए। जैसे कर्म के बारे में सुनता है कि हम हमेशा जब भी कोई कार्य करते हैं तो फल के बारे में पहले सोच लेते हैं कि मुझे क्या मिलेगा तो मैं कर्म करता हूँ। उसमें लेकर नहीं, अध्याय 3 कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कर्म तो करो निष्ठा से, पर फल को बचो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। तो जैसे ही आप इस भावना से करते हैं तो कर्म में से निष्ठा आती है और जो मिलता है प्रभु के साथ अच्छा ही। सर, हमने आध्यात्मिकता, मन की शांति और बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएशन की बातें की। सो आपकी तरफ से कोई एक मैसेज हमारे फ्यूचर लीडर्स के लिए कि what industry they should focus on for creating that impact? If someone wants to move to entrepreneurship, what industry they should focus on, or what problem solving they should focus on to create a bigger impact? देखिए आज की तारीख में चूंकि मैं एक एग्रीकल्चर बिजनेस से आता हूँ, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में रूरल मार्केट जहाँ आप हेल्थ केयर सप्लाईज, डिजिटल एजुकेशन या आप सप्लाई चेन्स, इसमें यदि आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे वेरियस पीसेस और वहाँ डिजिटलाइजेशन जो है उसको उसमें जोड़िए तो आपको इमेंस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अनटैप्ड मार्केट अर्बन सिटी में तो आप देखिए हर चीज एडवांस हो चुकी है। पर वहाँ पे इस जितनी भी एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज के हैं, ये जो मैंने आपको कहा है, इनको आप यदि ये डिजिटाइजेशन से जोड़ के बनाएंगे आपके सक्सेस। Thank you so much, sir. It was really, I mean, really great talking to you. मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ है कि हम जब सफलता हम जीवन का उद्देश्य मानते हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है, जो कि आप इनर क्लैरिटी से और अपने आप को आत्मविश्वास से बांट सकते हैं, पर जो प्रसन्नता है वो ही सफलता है। फिर जब प्रसन्न होकर काम करते हैं तो आप उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको कि हम परमात्मा बोलते हैं। और उस एनर्जी पर जुड़ने के बाद आपके अंदर इतनी शक्ति आती है कि आपके कार्य सफल होते हैं और प्रसन्नता से काम करने में आपको प्रसन्नता होती है, आपके आसपास के लोगों को प्रसन्नता होती है और आपके कार्य में सफलता है। तो उस यूनिवर्सल से एनर्जी जुड़ने के लिए आपको प्रसन्न होना जरूरी है, सफलता तो उसका आउटकम। थैंक यू।